some quotes. What do best of the scientists feel? There is a perfect brain behind all the natural physical laws. So what scientists are saying, we are again repeating, so that our faith becomes stronger. You know Albert Einstein. I hope everyone knows Albert Einstein. अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन ये बोल रहे कि देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉज, देयर इज. Scientists can only discover the things which have been already created by the master scientist God. The more I study science, the more I believe in God. उल्टा नहीं है, हमारे यहाँ उल्टा दिख रहा है अभी आजकल. ज्यादा पढ़ने से लोग बोलने लगते हैं, अरे तू पढ़ा लिखा है, क्या ये भगवान भगवान करता है. उल्टा बोल रहे लोग अभी. बट ये लोग एक नंबर के मूर्ख है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन तो मूर्ख नहीं है. तो उनके मुंह पे मार देना. ये ऐसा कोई बोलेगा ना तो उनको बोलना है अल्बर्ट आइंस्टाइन ये बोलता है और तुम ये बोलते हैं, क्या बोलेंगे तुमको. These slides are available. I'll share them with you. You can also make presentations if you want to raise the level of faith in people. Even your own children also, sometimes whoever is married, they also need such explanations. In 1938, a schoolgirl from Berlin wrote to Einstein asking if scientists pray. He replied, everyone who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that some spirit is manifest in the laws of the universe, one that is vastly superior to that of a man. So this is what real scientists feel. You also told, somebody told this. You told this, no? Some spirit is manifest in the laws of the universe, within our heart also and around us also, and we reciprocate with that energy. Einstein is saying same thing. You know Lord Kelvin? साइंस जिसने पढ़ा है केमिस्ट्री वगैरह उनको पता है. If you think strongly enough, you will be forced by science to believe in God, Lord Kelvin says. Newton says this most beautiful system of the sun, planets and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being. This being governs all things, not as the soul of the world, but as Lord over all. And on account of his dominion, he is to be called Lord God, universal ruler. Yes, ruler. So now we should see with the eyes trained in knowledge. When you are trained in knowledge, you can see differently, isn't it? So let us look at the world around us. Now, till now, we have been talking about natural design, satellites and computers, brain cells, etc. Now, something that Schrödinger tells, something which is close to our heart. Let us observe those things. We say somebody is beautiful. This girl is beautiful or not, that is personal perception. But we say that beautiful, or somebody is not so beautiful, or somebody handsome, not so handsome, somebody is very rich from childhood and somebody is poverty stricken, somebody is getting higher education and somebody is not getting any privilege of life so easily. Somebody is born in a silver spoon in mouth, in nice car, and somebody is getting basic necessities of life also is not so easy. Who decides? Is there any injustice or is there a justice? Somebody who is poor
and not getting basic access to necessities of life, he may accuse, why am I born poor? है कि नहीं? So is there any justice? Sometimes 10वीं की परीक्षा है, मैं भगवान के मंदिर में गया, पेड़े लेके गया, भगवान को चढ़ाया, बोला पास करा दे, और फिर फेल हो गया, तो मुझे भगवान में भरोसा करना चाहिए कि नहीं? कुछ है कि नहीं जस्टिस? अगर कुछ लिख के नहीं आया पेपर में, हाँ 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 हाँ, ठीक है। ऐसा देखते हैं ना हम लोग, वी चूज सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। क्या क्या हम चूज कर सकते हैं? हाँ, फ्रेंड्स चूज कर सकते हैं, कार कौन सी लेनी है, हाँ करेक्ट, कपड़े कौन से पहनने हैं, हाँ, ये सब हम चूज कर सकते हैं ना। जॉब कौन सा करना है, हस्बैंड और वाइफ, टाइप ऑफ कार। आजकल हो रहा है ना, अरे मैंने गलत चॉइस किया, डाइवोर्स, चलो दूसरा ले लेते हैं, अरे ये भी गलत हुआ, डाइवोर्स, तीसरा ले लेते हैं। चूज कर सकते हैं ना, कार, अपार्टमेंट एंड मेनी मोर थिंग्स, बट वी डोंट चूज। एक ही क्लासरूम में सबको एक जैसे मार्क क्यों नहीं आते? एक ही टीचर है ना, एक ही पेपर है ना, फिर क्यों नहीं आते? हाँ करेक्ट, कभी कभी बच्चा मेहनत भी करता है, मुझे पहला रैंक लाना है करके सोचता है। हर एक कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में, एजुकेशन में यही चल रहा है ना, है कि नहीं? एवरीबडी वांट्स टू बिकम टॉपर, बट ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होता है? क्या ये ऐसा है? ऐसा ही क्रिकेट मैच में कॉइन फ्लिप किया और हो गया। तो इज दिस वर्ल्ड रनिंग बाय चांस? एक चीज हमने देखा, क्रिएशन इंप्लाइज क्रिएटर, डिजाइन इंप्लाइज डिजाइनर, आर्ट इंप्लाइज आर्टिस्ट. Now the second accusation is, there is no rule, there is no law in this world, everything is by chance. You know Big Bang theory, one big bang happened and everything was created. So this universe, how was it created? Don't we see order and systematic arrangement in the universe? Somebody said this, that there is order. You only said yes, there is amazing order at all levels, atomic, subatomic, or our bodies. If you see, then there are these biological definitions, like what what are cells within the body, and how many cells are there, how many cells are coming up, how many cells are dying every day, how within a cell food is absorbed within the body. So many mechanisms are happening, DNAs and RNAs. Why my hair are like this, why my eyes are like this, why somebody has a brown color eyes, somebody has black eyes, somebody has long hair, somebody has short hair, somebody has uh, good height, somebody is less in height, somebody has some bodily diseases, somebody doesn't have. If you see, there is a structure which is presented by scientists, deoxyribonucleic acid, DNA, and there is a helical structure of genes, and then all reasoning of whatever we are, you can find in that genetical structure. All these things are well defined in science, quite elaborately defined in science. So if you see from a different perspective, everything is formulated and designed at a deep, subtle level. मोबाइल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम
है ऑलरेडी, इसीलिए वो जीपीएस और जीपीआरएस और ये सब चल रहा है, सैटेलाइट्स. These spectrums are there, we are just finding them and using them. But वो systematically है, already है. And as the Lord Kelvin say, more you believe in science, more you will believe in God. Because ये science आया कहाँ से, ये सब आया कहाँ से. So Oxford Dictionary, if you open and see the word cosmos, which is synonymous to universe, what it says is an orderly, harmonious, systematic universe. What is harmony? Have you heard of a harmony? Just a minute. Harmony. Harmony या harmony होता है ना. हारमोनी मतलब एक म्यूजिक डायरेक्टर एक पूरे हंड्रेड्स ऑफ म्यूजिशियंस जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं उन सबको एक गाना प्रस्तुत करने के लिए या एक परफॉर्मेंस प्रस्तुत करने के लिए सिंक्रोनाइज करता है. हैव यू सीन दैट? ऐसा दिखाते हैं ना कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर, ऐसा ये हाथ ऊपर कर रहा है, फिर वो 10 गिटार वाले गिटार प्ले कर रहे हैं, वो वायलिन बजा रहे हैं, वो रिदम वाले इंस्ट्रूमेंट्स वाले, वो एकदम से ऐसा करता है, फिर वो रुकते हैं, फिर यहाँ से हाथ उठाता है, वो चलाते हैं, फिर वो ऐसा करता है, फिर उनको समझ में आता है कुछ तो ऐसा करना है. उनके पास सामने और एक कुछ तो म्यूजिकल ये रहता है, नोट्स, नोटेशंस. ये सब हार्मोनियस, हार्मनी मतलब ये, व्हाट दिस डेफिनेशन इज सेइंग, इट्स हार्मोनियस सिस्टमैटिक यूनिवर्स. देयर आर सीजन्स. अभी बारिश का सीजन चल रहा है, फिर ठंड आएगी, फिर से गर्मी आएगी, बारिश आएगी. Seasons are coming and going. There is amazing order. If you see tremendous energy emitted by the sun, it's so amazing. This sun is so extraordinarily powered. It's like a powerhouse of energy that drives life on Earth and governs the dynamic of our solar system. है कि नहीं? सन है इसलिए लाइफ है. सनशाइन है इसीलिए एनर्जी है. एवरी काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग अल्टीमेटली फ्रॉम द सोर्स सन ओनली. दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ इट इज जनरेटेड? If there is hydroelectric power plant, hydroelectric means based on hydra, means water. Where from water is coming? Rain. Where from rain is coming? Clouds. How clouds are generated? Who generates that water out of sea? Clouds. So this energy is coming from sun. What is photosynthesis? Who said that? Yes, that's why I asked youngster. Process of food. What is that natural entity that helps in creating that food? Sunlight. Water, again, if you go in the creation, the steps of creation, water came later, heat came first. Earth, water, air, fire, ether, these 5 are gross constituent elements of creation. Bhumi, Rapo, Analo, Vayu, Kham. 5 gross elements of material energy. So they are designed by somebody. If you see, nuclear fusion is the core process of sun's energy making. It's driven by E is equal to mc square, Einstein's equation. And then the temperature and pressure of the sun, you saw how much huge is Earth. What is sun? Sun, the core temperature of sun is about 15 million degrees Celsius. 15 million degrees. It's as good as 250. The pressure is 250 billion
atmospheric pressure 250 billion. This is amazing. These numbers, if you see, the luminosity of the sun is, it emits approximately 3.8 into 10 to the power 26 watts of energy, known as its luminosity. Continuously it emits. हम अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी यूज करते हैं तो एमएससीबी का बिल कितना आएगा? भगवान ने पूछा है क्या कभी बिल? पर ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि कुछ बिल देना नहीं होता है, भगवान से पूछना पड़ेगा कुछ बिल है क्या भाई इसका? भगवान पे ही भरोसा नहीं है, उनके क्रिएशन पे ही भरोसा नहीं है, तो कहां से भगवान को अप्रिशिएट करेंगे या पूछेंगे हम? तो दीज आर सटल लेवल्स ऑफ फेथ इन गॉड. वन फेथ इन गॉड, ठीक है मानता हूं, साइंटिफिक है, बस हो गया. बट द अदर लेवल इज, कुछ बिल है क्या भाई? मुझे आपके लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? इज देयर एनी ड्यूटी फॉर मी एज अ ह्यूमन बीइंग? यू हैव मेड मी exist on this earth, in this planet, in this body. Is there anything expected from me? क्या हम अपने ऑफिस में सिर्फ सैलरी लेने जाते हैं? नहीं जाते हैं. सैलरी मिलता है, कुछ तो रीजन है उसका. सिमिलरली भगवान बोलते हैं, नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमा. व्यक्ति यज्ञ मतलब यज्ञ कर्म समुद्भवम. अगर व्यक्ति कर्म नहीं करता है अपना प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ गॉड, देन क्या होता है? भगवान बोलते हैं, नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य. इस लोक में, इस जगत में, अयज्ञस्य मतलब अपना कर्तव्य कर्म भगवान के रूल्स से नहीं किया तो अज्ञस्य अश्रद्ध दानस्य जैसे होता है कि जो अज्ञ है, अश्रद्ध दान है, वो कभी भी सुख को, आनंद को, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है. वैसे ही नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमा. इस लोक में ही क्या, कहीं भी जाओ, अगर आपने निसर्ग में बनाए हुए नियम भगवान के अगर नहीं पालन किए तो आपका फ्यूचर धोखे में है. इसका और एक मतलब भी है कि जो भी नैसर्गिक रूप से अच्छा हो रहा है वो आपने कभी तो वो रूल्स फॉलो किए थे इसलिए वो हो रहा है. अगर आप बोल रहे हो कि ये तो व्यक्ति रूल नहीं फॉलो कर रहा है अभी, उसके साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा है, पर उसने रूल फॉलो किया था कभी तो वो भूल चुका है और वो बहुत ज्यादा ही हैज बिकम पफ्ड अप. माज चढलाय म्हणतो ना आपण, पैसे आले माज आला बघायला, सगळ्यांना विसरला, ऐसा बोलते हैं ना. अभी पैसा आया तो सब भूल गया, दोस्त सब अभी देखो बात भी नहीं करता है. ऐसा स्टेट है वो. उसमें हमें प्रूफ नहीं देखना है भगवान है कि नहीं. हाँ, that is the next question. We are going to come to that. रूल्स क्या है, कौन सेट करता है? That is natural progression of our discover yourself. Now you are getting right questions and you are searching for right answers. Right place is there for your answers. So you will get answers. This step-by-step scientific method is exactly this. The question arises in your heart. You had something to say. Sorry, I didn't. I was asking why it is necessarily there must be an artist behind an art. I think this is what we can see the most wonderful thing is to like the nature, the earth, the sun. It can be the result of centuries of evolution that we can see. Evolution हमारे प्रकृति का प्रवृत्ति है. इवोल्यूशन से प्रकृति का वही नेचर है कि इवोल्यूशन होता है. जैसे कि हम हैं, हम क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क पे काम करते हैं. तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन का जो ब्रेन है उसको मिमिक करने का ट्राई करते हैं. तो व्हाट वी डू, वी सेट अ रिजल्ट. अगर वो रिजल्ट से अगर एरर आएगा तो वी डू समथिंग करेक्शन, वी कैन अचीव दैट एरर मोर विद मोर एक्यूरेसी. ये एक इवोल्यूशन हो रहा है. दैट्स हाउ वी अचीव सम रिजल्ट. तो इट कैन बी आल्सो इन नेचर आल्सो कि हम जो अभी हैं वो हम एरर एंड मिस्टेक्स को संभालते फिर ये डिकेड्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ इवोल्यूशन का रिजल्ट हो. व्हाई इज इट नेसेसरीली इट हैज टू बी क्रिएटेड बाय समवन एग्जैक्टली कि हमको क्रिएट कर दिया. आई थिंक दिस इज द, ये हमारी जो प्रकृति है
इसकी वजह से हुआ है, बट हु क्रिएटेड प्रकृति आई डोंट नो। That is the thing. Now, who is adjusting the weight matrix of neural network? Who is deciding how many hidden layers are there? There is somebody who is operating it. ये न्यूरल नेटवर्क अपने आप आ गया, Can neural can do बट न्यूरल नेटवर्क किसने बनाया? nature favor. नहीं, आप बना रहे हो ना एज अ पर्सन, तो यू आर आर्टिस्ट ऑफ दैट न्यूरल नेटवर्क. समझ में आ रहा है ना? सो यू गो बैक सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. प्रकृति को भी किसने बनाया? हाँ, कैसे होगा, प्रकृति कैसे आएगा? दैट इज द क्वेश्चन. सो देर इज सम पॉइंट वेयर यू हैव टू रूट योर ट्रस्ट. ट्रस्टेड कंप्यूटिंग मॉडल, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म सुना है आपने? टीपीएम करके एक चिप होता है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल. इन मॉडर्न लैपटॉप्स इट इज कमिंग. आई डोंट नो वेदर इट इज मेकिंग सेंस टू ऑल अदर पीपल, बट क्या हुआ है, अभी अगर आपने एसबीआई का वेबसाइट ओपन किया कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, हाउ कैन यू बी श्योर दैट इट इज एसबीआई वेबसाइट? ऐसा ही क्वेश्चन है ना, ट्रस्ट का क्वेश्चन है, प्रूफ का क्वेश्चन है. क्योंकि एसबीआई में आई कोई तो ऐसा ही एस्की टेबल का या यूनिकोड कैरेक्टर आई कुछ तो थोड़ा सा अलग है. ह्यूमन आई को वो आई ही दिखता है, बट वो एक्चुअल आई नहीं है. वो एसबीआई हाइफन ऐसा छोटा सा कुछ तो है, .com करके है. गड़बड़ हो गया ना, आपने रिपोज ट्रस्ट किया किसी में, बट वो ट्रस्टवर्दी नहीं, आपका पैसा चला गया. तो उसको ट्रस्टवर्दी है करके प्रूव करने के लिए एसबीआई को कुछ तो करना पड़ेगा. एसबीआई ने कहां पे किया? सर्वर पे किया. आपने लोगो दिखाएगा कुछ तो, ऐसा कुछ तो दिखाएगा, कुछ लॉग दिखाएगा, ग्रीन टिक दिखाएगा, कुछ तो दिखाएगा, बट वो सब कुछ देखने वाले आप है. आप फिर से उस पर डाउट करोगे ही ना. ये ग्रीन टिक दूसरा भी दिखा सकता है, वो लॉग दूसरा भी दिखा सकता है, ये सब आप करोगे. तो इसके लिए आपको सर्वर पे जो चल रहा है वो एसबीआई का ही सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये एश्योर करना है. तो आप क्या करोगे, सर्वर को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दे दोगे. फिर वो बोलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट तो एक मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन है, कोई भी दे देगा. फिर आपको एक रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी लगेगा. फिर रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी को आपको उसका सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा वो वेब ब्राउजर में. आपके सारे टर्म्स में बोल रहा हूं मैं. प्रॉब्लम कैसा जा रहा है रूट लेवल तक. अभी रूट सर्टिफाइंग एजेंसी का सॉफ्टवेयर ही हैक हो गया है. हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? तो क्या करेंगे? अभी रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट जनरेशन वाला सॉफ्टवेयर ही बराबर है कि नहीं, उसका ही ट्रस्ट नहीं है. अभी वो उसका ट्रस्ट के लिए उन्होंने और एक नीचे जाके बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो पूरा ट्रस्टवर्दी बनाएंगे, ताकि उसमें जो भी लोड होगा ना वो ट्रस्टवर्दी होगा. वो चेक करेंगे ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, वो डिजिटल सर्टिफिकेट चेन से आएगा. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ही परसों हैक हो गया माइक्रोसॉफ्ट का. At the end of the day, we have to go to the talk to the Some root. SBI के सबसे बड़े CEO से जाके बात करना. हाँ, करेक्ट. सम मैकेनिज्म. अभी वो मैकेनिज्म कहां तक आया, ये लैपटॉप में मदरबोर्ड पे एक चिप है, दूसरा चिप है, एक चिप दूसरे चिप को पूछ रहा है, अरे ये ट्रस्टवर्दी है क्या? अज्ञस्य अश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति. अभी इतना टाइम है क्या आपके पास ये सब ट्रस्ट इवेल्युएट करते बैठने के लिए? तो मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा था कि देयर इज अ रीजनेबल फेथ एंड देयर इज अ ब्लाइंड फेथ. So reasonable faith can be established by this kind of discussion. If you go through step by step presentation, you will come reasonably at a faithful level. Your faith will be reasonable. Now, can this building collapse anytime? It can collapse. But is it reasonable to believe that it can collapse anytime? डर के बैठे हो क्या आप? आपको रीजनेबल फेथ है कि ये कोलैप्स नहीं होने वाला है. Find out ना कि ये collapse करेगा कि नहीं करेगा. करेक्ट.
बट ये रीजनेबल फेथ का कंसेप्ट आप समझो, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप एक नेक्स्ट लेवल का रीजनेबल फेथ लेते हो तो आपके लिए बड़ा उसके नीचे वाला रीजनेबल फेथ का फाउंडेशन मिलता है, उसके बाद उससे भी रीजनेबल फेथ का फाउंडेशन मिलता है। सो इट्स अ प्रोसेस। प्रिसाइजली दिस इज व्हाट इज सेकंड सेशन, दैट प्रोसेस। What is second session? Getting the eyes to see God. Now you are coming to a reasonable faith. Your questions answer is in second session. वो आपने न्यूरल नेटवर्क का जो बताया एग्जाम्पल, इसका जो ये है, अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पर इसका आंसर डेफिनेटली सेकंड सेशन में मिलेगा आपको। बट व्हाट आई वांटेड टू इम्प्रेस इज देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। कभी झगड़ा हो जाता है तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बोलते हैं ना, नहीं पहले तू क्या बोला, फिर मैं क्या बोला, फिर तूने क्या रिप्लाई दिया, फिर मैंने ऐसा बोला, तू डायरेक्टली ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं ऐसा बोला इसलिए ऐसा झगड़ा हो गया, पहले तू देखना तू क्या बोला। तो ऐसे लाइक दैट देयर आर स्टेप्स, रीजनेबल स्टेप्स। हम बोलते हैं ना, अरे रीजनेबली आर्ग्यू कर यार, ये क्या आर्ग्यूमेंट हुआ क्या। तो वो आर्ग्यूमेंट को रीजनेबल बनाने में टाइम लगता है और वो ज्यादा गहराई से समझने लगता है। जस्ट लाइक आपका जो न्यूरल नेटवर्क्स है, क्या वो बच्ची बना सकती है वो न्यूरल नेटवर्क? वो स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंच सकती है ना। उसी तरह अपने भी इसमें स्टेप बाय स्टेप है। सो वो बहुत अच्छा है कि यू आर गेटिंग दीज क्वेश्चंस in your heart, his question, they are evolving us to the need of understanding this very scientifically, understanding it with solid foundation. तो अभी एक फाउंडेशन ये हुआ कि ये ट्रिमेंडस यूनिवर्स जिसमें ये अर्थ है इतना हेवी है, ये सन है इतना एनर्जी से भरा हुआ है, इसका रेडिएशन इतना स्ट्रांग है, ये पावर हाउस है इतना, कंटिन्यूअसली ये एनर्जी इतना दे रहा है, ये कैसे हो सकता है? आपके पास है क्या ऐसा सेल्फ मैनिफेस्ट एनर्जी विच इज प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर इमेमोरियल टाइम, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स? इसको चालू रखने के लिए पावर हाउस चालू होना चाहिए ना। पावर हाउस बंद हो गया, ये बंद हो गया, पर ये पावर हाउस बंद कैसे नहीं हो रहा है, ठंडा कैसे नहीं पड़ा इतने दिनों तक? ट्रिमेंडस एनर्जी है, इट्स नॉट अ जोक। इवोल्यूशन हो कुछ भी हो, but the fact that it exists as a design, intelligent design, there is something called as by chance and there is something called as an intelligent design. So the mature scientists are saying that it is intelligent design, it's not chance. That is first step. Got it? So like that we see organization and craftsmanship. Mystery of large banyan tree, she said, a single seed of a big huge banyan tree has how many trees in it? एक बीज है, वो बीज के अंदर कितने पेड़ है? एक बीज छोटा सा, कितने पेड़ है उसके अंदर? कितने पेड़ आ सकते हैं वो बीज से? एक पेड़ आधी बीज एकले, बीज अंकुरले, रोप वाढले, तुकाराम महाराज का अभंग है। एका बीजा पोटी फळे कोटी कोटी, प्रकटती सुमने फळे, ऐसा कुछ तो है। मतलब एक बीज से कोटि कोटि बीज आते हैं, क्योंकि वो पेड़ से और बीज बनते हैं और बीज से और, मतलब इट्स इनफाइनाइट। इतनी शक्ति भगवान ने एक बीज में, डिजाइनर ने एक बीज में बना के रखी है। इवोल्यूशन बोल रहे हैं ना, बट वो सीड का टेक्नोलॉजी है ना, सटल टेक्नोलॉजी, वो इतना ऑटोमेटिक है कि आपको उसका क्रिएटर है डिजाइनर दिखता भी नहीं है। इतना शार्प डिजाइन है, इतना पावरफुल इंटेलिजेंट डिजाइन है। सो इंटेलिजेंट है कि नहीं डिजाइन, दैट इज द पॉइंट। वेदर यू सी द ओरिजिनल क्रिएटर एंड डिजाइनर और नॉट, और परसीव इट इन व्हाट वे, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, बट द डिजाइन इज इंटेलिजेंट। यूनिवर्स का डेफिनेशन हमने देखा, कॉस्मोस का डेफिनेशन,
आर्टिस्ट्री इन लॉर्ड्स क्रिएशन में फोटोज देखे, फिर ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन अमंगस्ट हनी बीज, आप देखो डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक में दिखेगा, उनमें रोल्स होते हैं बीज के, उसमें एक वर्कर बीज होती है, उसमें क्वीन बी होती है, उसमें वो वो सारा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए अलग अलग ये होते हैं। ये सब कैसे, हाउ हाउ ऑल ऑफ दिस इज कमिंग? वर्कर बीज का रोल होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, द्रोण बीज होते हैं, द्रोण जैसा उड़ते हैं। अभी आप सोचिए, हमें द्रोण बनाने में इतने साल लगे हैं, बट ये सब बर्ड्स द्रोण नहीं है क्या? लिविंग एंटिटीज। इतना सा छोटा सा इंसेक्ट वो इतना एक्सपर्टली उड़ता है, उसका भी एक हृदय भी है, उसको बुद्धिमत्ता भी है, उसका ब्रेन का साइज कितना होगा आप सोच सकते हो? उसको पता है कि कौन सी जगह पे उसको रक्त मिलने वाला है और कहां पे उसको ऐसा घुसाना है उसका नांगी। वो उसमें ऑब्जेक्ट अवॉइडेंस एल्गोरिदम है परफेक्ट। कितना ब्रेन साइज है उसका, और उस ब्रेन के अंदर इतना बड़ा एल्गोरिदम चल रहा है। हाँ? अभी ट्रेन कोलाइड होता है तो लोग बोल रहे हैं कुछ तो एल्गोरिदम बनाओ, टक्कर नहीं होना चाहिए, इतने सारे लोग मरते, इतना बड़ा ट्रेन टक्कर हो जाता है उसका। पर ये मच्छर का टक्कर नहीं होता है किधर। सो इट्स अ ग्रेट आर्किटेक्चर। ये स्पाइडर्स का भी, आपको पता है एक साइंटिफिक मटेरियल है, दैट मटेरियल इज बुलेट प्रूफ मटेरियल। वो बुलेट प्रूफ मटेरियल ये स्पाइडर के इससे बनता है, थ्रेड से। स्पाइडर के थ्रेड में इतना स्ट्रेंथ है, आपने देखा है कभी स्पाइडर थ्रेड? उसको तोड़ने की कोशिश करो, वो लंबा 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 खींचते जाता है, क्योंकि उसमें उतना ग्रेट इलास्टिसिटी है। तो उसको यूज करके साइंटिस्ट ने बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। कैसा बनाता है वो? ऐसा ही है कि नहीं? इट्स अ मैजिक। इवोल्यूशन बोलो, कुछ भी बोलो, इट्स अ मैजिक। दीज लिविंग बींग्स, हम लोग मिरेकल नहीं देख रहे हैं अपने आसपास। एवरी डे देयर इज मिरेकल। हम क्या चाहते हैं? भगवान के ऊपर श्रद्धा हम करेंगे, कब करेंगे? पेड़ा दिखाओ 70% लाओ। मिरेकल चाहते हैं ना हम लोग, बट ये मिरेकल नहीं है क्या? भगवान ने जो बनाया है सृष्टि, ये सब मिरेकल है। तो देर आर सो मेनी लॉज, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ लॉज, केमिकल पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉज, कैसे कंपाउंड बनते हैं, कैसे क्रिएशन होता है, इसका सबका अगर स्टडी किया जाए तो वी सी दैट इवन insensible matter obeys nature's laws, definite nature laws. Laws of mechanics are there. It's a branch of physics that deals with the motion of objects. मैंने उदाहरण दिया आपको। अभी हमारे जो साइंटिस्ट है बैलिस्टिक्स वाले, ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन करते करते इवॉल्व हुए हैं इवोल्यूशन में, कि वो बैलिस्टिक जो बना रहे हैं हम लोग, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, वो रॉकेट जाने वाला है और कहीं पे जाके हिट करने वाला है। हमारा एक्सपेरिमेंट जब शुरू हुआ 1960s 70s में, तो बैलिस्टिक ऑब्जेक्ट फिर से हमारी ओर आता था उड़ के, क्योंकि हमें पता नहीं है वो कैसे हवा का काम करती है, रेजिस्टेंस कितना है, वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसका शेप कैसा होना चाहिए। धीरे धीरे the scientists, so many scientists studied how the ballistic object works. Now we have anti-missile dome of Israel. उसमें if some missile is flying towards your nation, you can intercept it in between. It's a great mathematics. It's very difficult to achieve because air is unpredictable flow of air, and little flow of air miscalculation, the whole direction will change. From here to 7,000 kilometers, if a missile has to reach and it has to hit the target within some 2 by 2 square kilometer, how much accuracy that missile should have? So are we not able to achieve such accuracy? अग्नि मिसाइल सुना होगा ना, भारत का अग्नि मिसाइल है।
ब्रह्मोस मिसाइल है, कैसे कैसे ये प्रेडिक्टेबल वे में चल रहे हैं? क्योंकि वी इन्वेंटेड द लॉज ऑफ नेचर एंड दोज लॉज ऑफ नेचर आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे आर मेड बाय लॉ मेकर. सो लॉज ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स है कि नहीं, ये दीज लॉज वी सी that stick is not bent, but due to refraction of light it is seen as bent. The light incident on that prism shows so many colors. These phenomena we have studied. So all these are laws. Laws of thermodynamics are there. Laws imply a lawmaker. Micro world level, macro world level, whichever level you go, there are precise laws of mathematical accuracy that govern this world. What is macro level world? The things which we can perceive. Micro means the reasoning, scientific reasoning by which the macro level world phenomena can be explained. So if you go sufficiently deep enough in macro or micro level, you will be able to see that there are laws, and laws imply a lawmaker. So how can our birth, beauty, intelligence alone be random events? इसको रैंडम बोलना मतलब क्या है? कोई भी रैंडम कब बोलता है? अगर आप किसी पुलिस वाले के पास गए, आपको किसी ने गाली दी, पीट दिया, वो पुलिस वाले के पास जाके वो कंप्लेंट ही नहीं रजिस्टर कर रहा है आपका, तो क्या बोलोगे आप? यार ये लोग रैंडम है. एक कोई दूसरा आया, उसको किसी का फोन आया, उसका झूठा वाला रिपोर्ट लिख के गया हो, आप क्या बोलोगे? कोई लॉ नहीं है इधर, कोई जस्टिस नहीं है इधर. बट ऐसा भगवान की सृष्टि में नहीं है. इफ यू सी साइंटिफिकली एट ऑल लेवल्स, अभी हम लोग इतना तो समझे कि साइंटिफिक माइक्रो एंड मैक्रो लेवल वर्ल्ड रन्स अकॉर्डिंग टू लॉज. वो लॉज है, इसीलिए हम मिसाइल फायर कर रहे हैं, हम एरोप्लेन में जा रहे हैं. वो लॉज हमने देखे, समझे, हमें वो यूज करने को आ रहा है, इतना ब्रेन हमें मिला है. तो इसकी वजह से देयर इज अ सिस्टमैटिक यूनिवर्स. लॉज है, ये तो समझा. अभी किसी का प्रश्न है कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता, ये भाई तो इतना मेहनत किया, इसने सब कुछ किया, फिर भी इसके ऊपर इनजस्टिस हो गया. तो कहाँ जस्टिस है? भगवान नहीं है, इनजस्टिस है. वो लेवल तक हम नहीं गए अभी तक, वो लेवल तक जाएंगे. हम प्रीमैच्योरली किसी लेवल पे जंप करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में. समझ रहे हैं ना व्हाट आई वांट टू से? इसीलिए योर अटेंडेंस इन दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. The 6 sessions are like limbs of a perfect body. अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, उसके हाथ ही नहीं है, उसका पैर ही नहीं है, वो अंधा है, तो उसके लाइफ में कुछ कमी हो जाती है ना, समथिंग इज मिसिंग. सिमिलरली ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर आपने परिपूर्ण नहीं समझा, परिपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझा, तो गड़बड़ हो सकती है. आप अपंग जैसा है, आप कुछ कर नहीं पाएंगे. तो इसीलिए हमें ये बहुत केयरफुली समझना है स्टेप बाय स्टेप कि देयर इज लॉ मेकर. बिकॉज देयर आर लॉज, डोंट फाइंड कॉन्ट्राडिक्शंस एंड controversial these things. Our minds are conditioned to do that by a wrong educational process. Just be very sure about this. Am I seeing things from a very fanatic extremist perspective? तो हमारे जो श्रद्धा के बीच में आने वाला जो सो कॉल्ड साइंटिफिक थिंकिंग है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा. सेकंड सेशन में आपको ये पूरा पक्का समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. यस. Yeah, I wanted to tell you something on this regional trust, right? कि उसमें ऐसा है Reasonable faith. Reasonable जो भी trust. तो अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई भी अगर बेबी है जो न्यूबॉर्न आता है इस दुनिया में आया और उसके मॉम डैड लेके चले गए, मे बी दे डाइड और समथिंग लाइक दैट, ओके.
तो अगर वो बड़ा होके बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं, मेरे मम्मी पापा नहीं है मतलब मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इवोल्यूशन से कुत्ते से ये बना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। रिडिकुलस है, करेक्ट। तो हमें मतलब मानना तो पड़ेगा कि ऑब्वियसली देयर इज अ रीजन कि मैं, हाँ। मेरा मेरा जन्म हुआ है, मेरे मॉम डैड थे, बट आई कांट सी देम, बट हम्म, आई वाज क्रिएटेड बाय देम, हाँ, राइट? अगर मैं बोलूं कि नहीं नहीं, मेरे मेरे फादर शायद एक डॉग हो सकता है या फिर गोरिल्ला हो सकता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। full of wisdom. Perfect example. This example was given by Srila Prabhupada also. Srila Prabhupada also gave similar example. Wonderful. You got the point. What is reasonable faith and what is fanatic thinking, extremist thinking? So extremist thinking is also a political agenda. You will come to know about it to manipulate the civilization. आप सुन रहे हैं ना आजकल there is a social media brainwashing. They are using these techniques. This Elon Musk quite often says about this. The media that you are exposed to, the what it is called propaganda it creates. Now elections and also are manipulated. Who will win elections in a country is manipulated. So the knowledge that comes to us has to be carefully evaluated. We'll see this in second session. Getting the eyes to see God. This is you will see a life changing perspective and very mature personality. Mature thinking will arouse. You will be able to see the cause and relationship. You will be able to see the subtleties of thinking. You will be able to see the sequencing of things. You will be able to see the steps in which the things can be understood. We have missed this in our education system. भगवत गीता है क्या हमारे इसमें? नहीं है. तो हम लोग बहुत कुछ मिस कर चुके हैं. तो don't miss these sessions. That Prabhuji was also mentioning. Don't miss them. We are going to go very deep in these things. 15वां अध्याय का श्रुतिफल क्या है मालूम है भगवत गीता की? एतद् ज्ञात्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. If you understand this knowledge, Lord Krishna says, you will become intelligent and all your efforts will be awarded with success. So it's a very deep science. आपके जीवन में आपको जो भी प्राप्त करना है ना, वो आप प्राप्त कर सकते हो. ये साइंस अगर समझेगा ठीक से तो. So it's a very deep, detailed understanding. So I hope up to now you are clear. How can our birth, beauty, intelligence alone be random events? Isn't there a law that governs these? Please think and respond honestly. Have you seen a complicated machine which has come by chance and has no purpose? No, it's not there. Any machine, computer, building, pen, pencil, anything, for that there is origin, there is purpose. So similarly, this universe also has origin and purpose. This is next level of faith in God. Please absorb these 2 points. There is origin of the universe and there is purpose for this universe. Unseen proven by the seen. Krishna says that mattah parataram nanyat kinchidasti dhananjaya. Can you see thread which is putting together all these pearls? But is there thread? So this is reasonable faith. So like that, we can have a reasonable faith in God. Mattah parataram nanyat kinchidasti dhananjaya. Mai sarvam idam protam sutre manigana iva. Mani means pearls or those और क्या बोलते हैं पता नहीं. ये मणि जो है ना, मणि जैसे धागे से गुथे हुए होते हैं, उसी प्रकार मैं सारे क्रिएशन को जोड़ने वाला व्यक्ति हूं, भगवान बोलते हैं. सो जब हम क्रिएशन में हार्मनी, डिजाइन, क्रिएशन, क्रिएटिविटी, लॉज ये सब देखते हैं, तो ये सब हार्मोनियस करने वाला एक आर्किटेक्ट है ना, सब कुछ जोड़ने वाला. एक घर चलाने के लिए कितना तकलीफ होता है. एक माँ को पता होता है
कितने काम होते हैं। एक ऑफिस में डिपार्टमेंट चलाने के लिए कितने लोग लगते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनी चलाने के लिए क्या लगता है। ये दुनिया चलाने के लिए कुछ नहीं लगता क्या? कोई नहीं लगता, अपने आप चलता है रैंडमली। साइंस तो नहीं बोलता है ऐसा रैंडमली चलता है। साइंस तो अवॉर्ड करता है आपको, अगर नेचर अवॉर्ड्स यू इफ यू फाइंड आउट द साइंस बिहाइंड नेचर, है कि नहीं? तो लाइक दैट, इफ यू रेसिप्रोकेट विथ नेचर इन अ प्रॉपर मूड, the way God wants you to reciprocate, the nature will start reciprocating with you. Are you getting point? There your faith will start building. So science is not opposite of nature or laws of nature or creation or intelligent creation or intelligent design. Intelligent design and science both go hand in hand. If somebody says that there is no intelligent design, there is no creation, intelligent creation, there is no creator, there is no law, and there is no lawmaker, then he is making a mistake. It's not a scientific observation. It can be easily defeated. In fact, it is easier to prove existence of God than to disprove. So, Janmadhyasya Taha. Our Vedic scriptures say, Vedanta Sutra, God is the original source and cause of everything. Anadir Adir Govinda Sarva Karanam Karanam. Now, it's not compulsory that you believe these statements, but there is somewhere something written by somebody. How do you evolve science? Okay. How that research work builds as a knowledge base? Books. Newton has written books. So why this book cannot be trusted and Newton's book can be trusted? That we will see in the second session. What to be trusted and what not to be trusted. What is the parameter of trusting something? We have never gone in education system and questioned education system itself. We will question that because our Vedic science starts from there. It questions the authority of speaker and starts from there. So we will see that in the second session. Now something we will see this. When we see this, we can't see engine. Just like you gave example. Father and mother are unseen. But does it mean there is no engine? The things are moving because bogie 2 is pulling bogie 3. Bogie 3 is pulling bogie 4. Similarly, bogie 1 is pulling bogie 2. And bogie 1 is getting pulled because of engine. So that engine is the creator, lawmaker, designer. Sometimes in a long train, in the last compartment, you can't see where engine is. But does it mean engine is not there? So let us define God as something which is cause of all causes. Cause of all causes. There are causes for everything. The more deep you go into cause, more scientific you are. You understand deeper cause. So if you understand God, you are the greatest scientist. Scientific faith. If you have scientific faith in God, you are greatest scientist. So can a scientist believe in God? Yes. Is there any scientific exploration of existence of God? Yes. Is there any definition of God? Yes. Cause of all causes is one of the attributes of the definition of God. So if an ordinary bogie of a train has cause of cause, why can't Brahmaji's statement Sarva Karana Karanam be
an attribute of God. It's a perfect definition. God means cause of all causes, sarva karana karanam. So now whether God is Krishna or some other God or some Ganpati or Shiva, that is a different question. But God is a reality, scientific, observable reality. Can you show me God? This is proposition of people. So there is visible range of spectrum. Have you heard optical range? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्सरेज होते हैं. एक्सरेज, कैन यू सी एक्सरेज? आर देयर एक्सरेज? हाउ डू यू नो एक्सरेज आर देयर? Because they have a photographic impact on a thin film and it produces a perfect picture. Therefore X-rays are there. Similarly, we go to the immediate cause. Then when we understand immediate cause, we go to next level cause. Then we go to next level cause. Like that we reach cause of all causes. Sarva karanam karanam. But at the start itself we ask, show me God. Then it is unscientific. So this is reverse brainwashing or brain cleaning process. The question is ridiculous. Do we ask this question, hey, show me electromagnetic waves? No. Show me air. Show me God. God is sukshmat sukshmataram. Anor aniyam mahato mahiyam. This is one of the definition of God according to Upanishad. Anor aniyam means एटम का भी एटम है भगवान. दूरस्थम अंतिके चयत. भगवान सबसे दूर भी है, सबसे नजदीक भी है. तो ऐसा सूक्ष्म तत्व है भगवान, उसको आप मुझे दिखाओ नहीं तो नहीं बिलीव करूंगा. ये क्या रिडिकुलस स्टेटमेंट है. अगर यहाँ पे कोई बोलेगा मोदी पंतप्रधान है क्या, आके खड़ा करो इधर, तो ही मैं मानूंगा. व्हाट इज दिस रिडिकुलस स्टेटमेंट? मोस्ट अनसाइंटिफिक क्वेश्चन. सो ऐसा अगर कोई पूछता है तो इट इज अनसाइंटिफिक. अगर अपना मन ऐसा पूछ रहा है तो दैट मन इज अनसाइंटिफिक. सो स्टिल इट इज एम्पिरिकली पॉसिबल. एम्पिरिकल मेथड्स आर देयर बाय विच वी कैन. अभी ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री हैज सो मेनी मिनिस्ट्रीज. इजंट इट ट्रू? है कि नहीं? होम मिनिस्ट्री है, ये सप्लाई ऑफ मेडिसिन वाला मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री आजकल बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक वाटर नीड सप्लाई मिनिस्ट्री. ऐसा यूनिवर्स में कुछ है क्या? वो सोचो. एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन. मोदी का एग्जांपल दिया क्योंकि वो गवर्नमेंट है, चला रहे हैं. अभी मोदी का कुछ लॉ आता है तो उसमें ऑथोराइज सिग्नेटरी साइन करके भेजते हैं, तो अपने पास एक परसेप्शन आ जाता है कि हाँ ये गवर्नमेंट का गैजेट का रूल है. अभी नया लॉज आया है ना. तो सिमिलरली यूनिवर्सल गवर्नमेंट में कुछ ऐसा है क्या जिससे हमें पता चले कि गवर्नमेंट है? अभी मैं अगर जाता हूं रास्ते पे, दारू पी के किसी को उड़ा देता हूं, तो कैसे समझेगा कि गवर्नमेंट है कि नहीं? कोई तो पकड़ के लेके जाएगा जेल में. ऐसा सिमिलैरिटीज यूनिवर्सल गवर्नमेंट में है क्या? होम मिनिस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ है क्या? ऐसा कुछ है जिससे हमें पता चले कि अरे हाँ कुछ तो लॉ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है. फूड चेन, जीवो जीवस्य जीवनम. एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है. करेक्ट. दिस इज वन. बट वेयर डज इट फिट? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, वहां पे वो सिनोनिमस है कि हर एक के लिए कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था निसर्गतः है. हमें प्यास लगती है, पानी है ना? नहीं है क्या पानी? पानी नहीं होता, रैंडम होता सब कुछ. प्यास लग रही है, पानी नहीं है. निसर्ग में पानी की व्यवस्था ही नहीं की है,
खाने की व्यवस्था ही नहीं की, ऐसा है क्या? देयर इज समथिंग, सम गवर्नेंस इज देयर, सम जस्टिस इज देयर. एक प्यासे को पानी की कीमत पूछो, मान जाएगा अरे भगवान है. पानी की प्यास दूध से मिटती है क्या? दूध ही बनाते भगवान, पानी क्यों बनाना है? तो पानी बनाए, इसमें लॉजिक है ना कुछ तो. थर्स्ट एंड वाटर, when they come together, that phenomena of giving pleasure is some intelligent design. और इसका रेफरेंस भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, रसो हम अपसु कौन्तेय, मैं पानी की टेस्ट हूं. पानी अभी घर जाके आज पीजिए, टेस्ट को महसूस कीजिए और भगवान का अनुभव कीजिए. पानी का टेस्ट एक जादू है, आपको अनुभव करना है उसका. सिर्फ पानी कैसे प्यास बुझाता है, एक अमेजिंग फेनोमेना है. तो राइट, दिस इज वन ऑफ द वेरी नाइस एग्जांपल्स. ठीक है, एक एक देखें क्या, तो आइडिया आएगा. अगर कुछ लॉज ब्रेक करते हैं हम, तो उसका कुछ पनिशमेंट होता है क्या? पुलिस पनिशमेंट नहीं, अपना इंडियन पीनल कोड वो वाला नहीं, निसर्ग में स्मोकिंग से कैंसर होता है, इलिसिट सेक्स से एड्स होता है, ड्रिंकिंग ज्यादा करने से अल्कोहल लीवर प्रॉब्लम होता है, टोबैको खाने से ब्रोंकाइटिस होता है. विजिबल लॉस तो दिख रहे हैं ना. अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा, मराठी में बोलते हैं. कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है पर पढ़ाई नहीं करता है, तो कम मार्क्स आते हैं. तो लॉ है ना कुछ तो, पढ़ाई बिना पढ़ाई किए कोई मार्क्स आते हैं क्या? एक बार भी पढ़ा नहीं है 100 आउट ऑफ 100, ऐसा हो सकता है क्या? कंसिस्टेंसी है ना, लॉज है कुछ तो. सप्लाइंग मेडिसिन, मेडिसिन आयुष मिनिस्ट्री देता है, गवर्नमेंट देता है मेडिसिन, की निसर्ग में कुछ है इसीलिए मेडिसिन बना पा रहे हैं. मेडिसिन इज प्रोवाइडेड बाय गॉड्स गवर्नमेंट. पानी, ये जो फेनोमेना बोल रहे थे, ओशन वाटर एंड ऑल, कितना मिलीमीटर बारिश हुआ पुणे में 2 दिन पहले? शिवाजी नगर में 250 मिलीमीटर, वो लवासा में 400 मिलीमीटर हुआ बारिश. 400 मिलीमीटर बारिश, इतना पानी अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना है ह्यूमन बींग्स को, इतना बारिश से सब कुछ, ये सपोज जितना ये बारिश में ये मंदिर भीगा है ना, उतना मंदिर को अभिषेक हम लोग करेंगे मिलके. क्या मैकेनिज्म लगेगा? व्हाट मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड? कुछ हेलीकॉप्टर लाने पड़ेंगे, 1000 लीटर का टंकी लगेगा उसमें, 10,000 लीटर का, और कितना पानी डालना पड़ेगा, और कितना उठा के लाना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा. अभी भगवान पानी बरसाने का मैकेनिज्म देखो, वो जो क्लाउड है वो पानी से भरा हुआ, इसके थ्रू प्लेन जाता है फिर भी लीक नहीं होता है वो. आपने सोचा है कितना फ्लड हो सकता है 10-15 मिनट में? ये क्लाउड क्या है, कैसे इतना पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? क्या मैकेनिज्म है इसमें? आपको गवर्नेंस नहीं दिख रहा है, प्लानिंग नहीं दिख रहा है, डिजाइन नहीं दिख रहा है. बुद्धू है कि क्या है, बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, आदमी बोलेंगे कि पता नहीं क्या और बोलेंगे, है कि नहीं प्रभु जी? ये सब हम देखते नहीं, इसीलिए हमें भगवान है कि नहीं ऐसा लगता है. ग्रेटिट्यूड तो दूर की बात है कि अरे पानी बरसा रहा है भाई, पीने को मिल रहा है, प्यास बुझ रही है, खाना मिल रहा है, मेडिसिन मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है फ्री में, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिल रहा है, सब गवर्नमेंट में व्यवस्था है ना भगवान की. एयर, वाटर, मिल्क, ग्रेन्स, सन एंड मून, गोल्ड, सिल्वर, नवरत्न, डायमंड्स. क्लीनलीनेस के लिए सन में मैकेनिज्म है क्लीनलीनेस का. हाँ, पिग्स जो है वो मैकेनिज्म है ना गंदगी साफ करने का,
फिशेस भी गंदगी साफ करते हैं, तो उसको सिम्बियोटिक फैक्ट्री बोलते हैं। सिम्बियोटिक फैक्ट्री मीन्स एक फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल दूसरा फैक्ट्री का इनपुट है, वो दूसरे फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल इस फैक्ट्री का इनपुट है, दोनों परस्पर पूरक है। बना के दिखाओ आप मैन मेड ऐसा कुछ। कार्बन एंड ऑक्सीजन का ऐसा रिलेशनशिप है सिम्बियोटिक फैक्ट्री। पेड़ क्या लेते हैं और क्या देते हैं, हम क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं। कुछ सेंस नहीं है, डिजाइन नहीं है, ऐसा ही किया है सब, ऐसा ही हो गया इवोल्यूशन। एक एक छोटी चीज में देखेंगे कितना इवोल्यूशन। एक मिसाइल अगर एक साइंटिस्ट को बोले तो उसका टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है, उसको बोले ये सब इवोल्यूशन है, एक थप्पड़ मारेगा खींच के। इवोल्यूशन मेरा मेहनत है, मेरा ही नहीं हजारों लोगों का मेहनत है। वैसे ही saying merely evolution without reference to designer and creator is a sense of lack of gratitude to God. Of course वो पर्सन है, एनर्जी है, क्या है, ये सब आगे की बात है, बट कम से कम इवोल्यूशन कैनॉट बी जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज उसके बियॉन्ड भी कुछ है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री वेदास है, हम ये सब सीख रहे हैं, वेदों के बेसिस पे सीख रहे हैं। रिवॉर्ड्स फॉर बेस्ट सिटीजन्स, योगा करो नहीं हुआ रिवॉर्ड तो बोलो, मेडिटेशन करो नहीं हुआ कुछ तो बोलो, हेवनली प्लेजर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये तो बात की बातें हैं, बट लाइक दैट। सो व्हाट लेसन्स डिड यू लर्न? I'll put it because we have I promised him 12:30 को बंद करेंगे, बट क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्विकली फिनिश करते हैं फर्स्ट सेशन। आई थिंक यू गॉट what is meant to be understood in this session. Lesson for the universal government: behind every government there is a prime minister or president or whatever system. Behind the universal government there is God. This is Vedic understanding. Break government laws, be punished. Break laws of God, brings suffering. God is the owner of the universe. God is the supreme controller of the universe. I believe in God who reveals himself in the orderly harmony of the universe. I believe that intelligence is manifested throughout all nature. The basics of scientific work is the conviction that world is an ordered and comprehensible entity and not a thing of chance. When I sit there here and watch the mighty ocean, I can imagine the treasures hidden below the bed of the sea. When I see the clear blue sky above, I feel sky is the limit. When I cast my eyes around, I see the wonders and beauties of nature. Science must learn to live in harmony with all these magnificent gifts of God to humanity. This is scientific thinking. Albert Einstein is shown so many times because he is icon of intelligence quotient, isn't it? So Albert Einstein said, scientists can only discover the things which has been already created by the master scientist God. The more I study science, the more I believe in God. So prime duty is use one's intelligence to appreciate the inconceivable brain of the Lord, to glorify the mysteries of the Lord's creation, to create worldwide spiritual awareness. Sorry, this is one point. To understand and explain the purpose of Lord's creation. So in summary, design implies designer, creation implies creator, organization implies organizer, artistry implies artist, law implies lawmaker, energy implies energetic. So all these are attributes of God. Can we go the reverse way? We define God as designer. God particle सुना है क्या आपने? एक कंसेप्ट आया था बीच में, हाँ, God particle. उन्होंने God particle करके एक डेफिनेशन दिया ना साइंटिस्ट ने. So let us define God as somebody who is designer. May not be person or may be a person. We don't know up to now. But we define somebody who is behind, rather than defining, we'll go to that slide. Let us define designer, creator, organizer, artist, lawmaker,
and the energetic person behind all these miracles is God. Let us define. Now, this is important point. According to the Big Bang theory, please carefully listen. Everything began from a point of infinite temperature, density, size, and point that is physically unrealizable, mathematically indescribable, beyond all conceptions of space and time. This is Big Bang theory. इसका मतलब क्या है? हम कुछ भी नहीं जानते, मैथमेटिकली हम समझा नहीं सकते, फिजिकली क्या है पता नहीं है, यही लिखा है ना सिंपल वर्ड्स में. ये बिग बैंग थ्योरी है जो साइंटिफिक थ्योरी करके हम एक्सेप्ट करते हैं. दूसरा थ्योरी क्या है? ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में बोल रहे हैं. इट शुड बी एम्फसाइज्ड दैट नो थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम हैज येट वन जनरल एक्सेप्टेंस. All involve highly improbable assumptions. Now, if our child asks, how can a physically unrealizable, mathematically unverifiable theory be accepted as a scientific theory? Is it not blind faith to believe everything came from a big bang? Is it not a good joke to think a point to be the cause of all causes? Point. Suppose एक बड़ा blast हो गया पुणे में, तो ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व होगा कि ऑर्गेनाइज चीजें डिवॉल्व हो जाएंगी. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं. एक किसी फैनेटिक रिलीजियस सेंटिमेंटल पर्सन ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, एक लोकल ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो लोकल ट्रेन बिगड़ती है कि बनती है? तो बिग बैंग होता है तो बिगड़ता है चीज कि बनता है? दूसरे साइड पे God is the supreme cause of all causes. It is by God's control the rains are showering, sun is rising, seasons are changing, crops are growing. All these don't happen from a mere bang. Even behind a bomb blast there is a person. Which is more logical? Scientific proposition. You tell. साइंटिस्ट बोल रहा है मैथमेटिकली हम बता नहीं सकते, फिजिकली बता नहीं सकते, केमिस्ट्री बता नहीं सकते, बस एक बड़ा पॉइंट से ब्लास्ट हो गया और उसमें से अपने आप सब शुरू हो गया. अगर वो सही भी पकड़े तो पॉइंट कहां से आया और वो ब्लास्ट कहां से हुआ? ये क्वेश्चन के बाद साइंटिस्ट जा ही नहीं सकते ना, बट स्क्रिप्चर्स जा रहे हैं उसके बाद. और ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा क्यों होना चाहिए कि गॉड नहीं है? ऐसा ही सत्य क्यों होना चाहिए? हो भी तो सकता है. क्यों ऐसा माने कि गॉड नहीं है? अभी दोनों एक्सट्रीम्स में आपको विचार करना है आपके हृदय में. जितना ये मैं बोल रहा हूं ना, इतना आसान नहीं है अपने हृदय को कन्विंस करना. हम बहुत सुपरफिशियल थिंकिंग करते हैं, बट अगर हम सही मायने में गॉड को क्रिएटर, डिजाइनर, लॉ मेकर बोलेंगे ना, तो हम सीरियसली गॉड कॉन्शियसनेस के लिए एफर्ट्स डालेंगे. हम जानना चाहेंगे कि क्या लॉज है, मैं वायलेट तो नहीं कर रहा हूं. लोकल ट्रेन में मैं चढ़ गया, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में पकड़ा गया और बोला कि अरे इसमें भीड़ कम था इसलिए चढ़ा, मुझे छोड़ दो. नहीं, अरे तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा. क्यों भरना पड़ेगा? देयर आर लॉज. सिमिलरली, वन हु हैज faith in God, practical faith in God, will actually go ahead in finding out laws of nature and his duty. So therefore, that previous slide was saying that we have duty in this case. The faith in God is a scientific phenomena. So being part and parcel of God in this nature, we have duties. Now, how do we come to know about duties? How do we come to know about who is that person? How do we come to know about what he wants from me? What is the source of seeking him? That is second session. So please be on time. Don't
miss it. Please do attend Kirtan. Please attend all sessions. Give a serious priority to this because this is related to you, everyone. This is related to you, not related to God. This is important for you and most important. So it's a serious priority. If you miss out on any session by chance तो कुछ नहीं होता, but आप नेक्स्ट डिवाइस में उसको कवर कर सकते हैं, वो ऑप्शन है. तो अगर इनएविटेबल सर्कमस्टेंस है तो ठीक है, बट ट्राई टू मेक इट अ प्रायोरिटी. ठीक है. सो विल स्टॉप हियर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. ये टोंग 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 इसलिए कोई सो रहा होगा तो जग जाएगा. नो गॉड नो पीस. इसका अगर के ने OW की जगह पे सिर्फ NO रख दे तो भी वो सही है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. विल स्टॉप हियर. If you have any questions, we can take one or two, I don't know, or we can take it offline also. Now